लाइट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट। इवन स्मॉलर क्लासेस में भी किसी न किसी फॉर्म में लाइट को पढ़ाया जाता है। डू यू नो दैट द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। लाइट जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतना ही ईजी भी है, पर कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने के कारण बच्चों को यह टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। सो इस वीडियो में हम लाइट को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि लाइट हमें इंटरेस्टिंग के साथ साथ ईजी भी लगे। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, light is an electromagnetic radiation that can be detected by our human eye. Its wavelength is from 750 nanometer to 400 nanometer. अब ये definition कुछ लोगों को complicated लग सकती है. So in simple words we can say light is a form of energy that can be detected by our eyes and helps us to see. Middle class level तक ये definition simple भी है और sufficient भी है. But how does light helps us to see things? We have studied that eyes are necessary to see things. Eyes ही हमें चीज़ों को दिखाती है, but क्या केवल eyes का ही presence sufficient है? Can you see anything in the dark? You can say कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, पर जो थोड़ा थोड़ा हम डार्क में देख लेते हैं, that is not complete dark. If you can go inside a completely dark room जहाँ कहीं से भी कोई भी लाइट नहीं आ रही हो, then you will not be able to see anything. So to see anything, जितना important हमारी eyes हैं, उतना ही important light भी है. किसी भी चीज़ को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचे. जैसे इस बॉल को हमारी आई तभी देख पाती है जब इस बॉल पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचे. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दे आर एक्चुअली द सोर्सेज ऑफ लाइट. वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. There are many natural luminous objects as well as man-made luminous objects. Natural luminous objects में sun है, stars है, and there are many animals also which produce their own light by the process of bioluminescence. For example, firefly, glowing jellyfish, bobtail squid, anglerfish. ये वो animals हैं जो बायोल्यूमिनेंस के थ्रू अपनी बॉडी से खुद लाइट एमिट करते हैं. देर आर सर्टेन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, लेजर, ट्यूबलाइट, एलईडी, CFL, अ बर्निंग कैंडल विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. सो ऑल दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Now the objects which do not produce or emit their own light are called non-luminous objects. They can also be called as illuminated objects because they get illuminated by the light falling on them. They don't have their own light. They reflect the light falling on them and thus become visible. तो वो objects जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरह से हमें विजिबल होते हैं. They are called as non-luminous or illuminated objects. For example, table, chair, book. Moons and planets are also non-luminous objects. हमें moon और planets चमकते हुए दिख सकते हैं, but that light is actually the light reflected by them. जब sun की light moon या planets पे पड़ती है, तो planets उसे reflect करते हैं और इसलिए वो हमें चमकते हुए दिखते हैं. They don't have their own light. That is why they are non-luminous objects. Now let us classify the objects on the basis of how they react with light. इस basis पे objects तीन तरह के हो सकते हैं: transparent, translucent and opaque. अगर object अपने अंदर से light को completely pass through होने देते हैं तो उन्हें हम transparent कहेंगे. अगर partially pass होने देते हैं तो उन्हें translucent कहेंगे, और अगर लाइट को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होने देते तब उन्हें हम ओपेक कहेंगे.
The objects or materials which allow light to pass through them easily and completely are called as transparent objects. Now because transparent objects अपने अंदर से light पूरी तरह से pass होने देते हैं, तो we can easily and very clearly see through a transparent object. और इसीलिए transparent objects की shadow नहीं बनती है, ठीक है, because they don't block any light. बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के, जैसे एयर, क्लीन वाटर, ग्लास, सेलोफेन शीट एंड एक्रेलिक प्लास्टिक एक्सेट्रा. एक्रेलिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिससे आजकल आई ग्लासेस बनाए जाते हैं और बहुत सारे विंडोज, कार के विंडोज भी बनाए जाते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने अंदर से पार्शली पास होने देते हैं, थोड़ा थोड़ा पास होने देते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. अब क्योंकि ये लाइट को पार्शली ही पास होने देते हैं, तो इसके थ्रू जब हम देखेंगे तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी. वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. और इससे जो शेडो बनेगी वो भी फेंट शेडो होगी, बिकॉज दे आर नॉट ब्लॉकिंग द लाइट कंप्लीटली. वो कुछ पार्ट लाइट का ब्लॉक कर रहे हैं और कुछ को अपने अंदर से पास होने देते हैं. इसीलिए जो शेडो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से बनेगी वो बहुत डार्क नहीं होगी. इट विल बी अ फेंट शैडो. द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, सॉटेड अनियंस, फॉग एंड स्मोक. ट्रेसिंग पेपर को अक्सर लोग क्राफ्ट में यूज करते हैं. बटर पेपर आप सबको पता होगा, केक बनाने के लिए यूज किया जाता है. सॉटेड अनियन, जब हम अनियन को फ्राई करते हैं तो जब तक वो हल्का सा पिंकिश ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता तब तक उसे फ्राई किया जाता है. फॉग इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट, क्योंकि फॉग में भी हमें बहुत क्लियरली नहीं दिखता है. एंड सिमिलरली स्मोक इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट. Opaque objects are those objects or materials which do not allow any light to pass through them. अब क्योंकि opaque objects अपने अंदर से कोई भी लाइट पास नहीं होने देते, so we cannot see through these objects. हम इन objects के आर पार नहीं देख सकते हैं. And that is why we get a dark shadow as light is completely blocked by an opaque object. Opaque object लाइट को completely block कर लेते हैं, इसलिए जो शेडो बनती है वो डार्क होती है. एग्जाम्पल्स आर वुड, ब्रिक, स्टोन, मेटल, मिरर एंड कार्डबोर्ड. नाउ समटाइम्स चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड कि मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे हुआ. वो तो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. बट एक्चुअली सी द डेफिनेशन ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स केयरफुली. इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. एक्चुअली ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. दे जस्ट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. वो अपने अंदर से लाइट को नहीं पास होने देते. एंड दैट इज वाई वी गेट अ क्लियर शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. मिरर्स आर वेरी स्मूथ, तो इससे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही क्लियर इमेज मिलती है. बाकी ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, बट देयर सरफेस इज वेरी रफ, तो उससे एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एंड वी आर नॉट एबल टू गेट एनी इमेज. ऑल्सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन अ मिरर एंड अ ग्लास. मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, जबकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ग्लास के थ्रू लाइट आर पार हो जाती है. Now I have made a picture and I have taken 3 sheets, a transparent sheet, a translucent sheet and a opaque sheet. Let us try to see this picture through these sheets. When I put the transparent sheet over it, you can clearly see the picture. When I put a translucent sheet, still you can see the picture, but it is not very clear. But when I put the opaque sheet, you are not able to see the picture. इसी तरह से एक एक्टिविटी के थ्रू आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनेगी, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की एक फेंट शैडो बनेगी और ओपेक ऑब्जेक्ट की डार्क शैडो बनेगी. नाउ इन डेली लाइफ अक्सर हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की भी एक हल्की सी शैडो दिखाई देती है,
बिकॉज इन रियलिटी दे आर नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। उनमें थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स, थोड़े बहुत फिंगर मार्क्स या कुछ ना कुछ निशान होते हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी बहुत ही फेंट सी शैडो दिखती है। बट इफ़ यू कैन अरेंज अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो उसकी शैडो बिल्कुल भी नहीं बनती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज एयर। एयर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसकी कोई शैडो नहीं बनती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।